Good morning. Yeah. So today I will be the third lecture, that is on intelligent transportation system, that is ITS. Next, please. Yeah. So as I already mentioned, that one based on the research and based on the practice, those 5 pillars have been identified, and this is what the Americans they are following, and most of the other countries also they are now following that approach. So here I will be just discussing about content, status, road safety strategies, intelligent transport system, and ITS applications and examples. Yeah, next please. So again, like as already I mentioned that what is the status of road safety situation, and about in 2022, 1.2 million people, road users, they lost their lives globally, and 15% of that one, that is about 173,000 those fatalities they occurred in India, and which is a rate, our rate is about 12 per 100,000 population, per lakh population, and for global average is about 18.2, and the lowest one is like Sweden and Norway, which is 2.0. So, and most of the European countries, they are about, like Australia is 5, only that USA is exception because of that all high speed, so it is around 10. So, but when we compare with other all countries, like still we are the highest populated country, but even on the basis of population, our rates are very, very high. And this is again, this is a reported figure, but in reality, what the WHO and other agencies, they have mentioned that it is about more than 3 lakhs those fatalities per year, because as I already mentioned, the definition fatality is for 30 days. So that is very, very important, that we have to understand that it is, and again, not only that one, that it is increasing every year. Last 10 years, if you take the figure, except that COVID 2020, every year it is increasing by at least by 5 to 10%. So overall picture for the last decade is about 15 lakhs people, they actually lost their lives. And again, all these are untimely. And one of the main reason for that one is the overspeeding. So how we can actually do that one, that especially overspeeding is the one where speed management comes in a big way. So how we can do that speed management, where that, so the best way is to do that one, that we have to actually use the technology. And with the technology, it is possible to actually prevent those crashes with the overspeeding. And also where the people are not following the rules and regulations. So that way we can do that one, and plus also we can improve the performance. Because basically when we say that why the roads are being designed or roads are constructed, we always say that that movement should be efficient, smooth and safe. So to have an efficient movement of the traffic, then we need something which is, you can say, technology driven, and which that is what I will be discussing today. And also there is another that lecture, that last one, where it is the today's situation and then what will come in the future, like connected vehicles, those use of AI, artificial intelligence. So those type of thing, automation. So those things will be discussed in the lecture number 10. Yeah, next please.
So when we talk about road safety, again, we usually refer that it is the methods and measures used to prevent road users from being killed or seriously injured. Typical road users include all motorized, non-motorized, vulnerable road users, pedestrians, and so on. So best practice is, as I mentioned, that one what is based on the experience is the follow the safe system approach. Next, please. So road safety, as I mentioned, that one that in the design itself we can incorporate that safety, which has been neglected so far very badly. So if we can do that safety conscious design and also get it verified or checked by that road safety audit, then we can actually make roads and roadsides much more safer. Next, please. So means that engineers, they can use the principles from the transportation engineering and available and evolving technology and apply them to create designs that meet local regulations and international standards. So that is our aim, and that's why we are discussing about this intelligent transport system. Next one. There are many IRC codes which have already been prepared, discussed, and approved. And out of that one, that IRC SP 110 2007, which is dealing with the applications of intelligent transport systems. So there are other codes which are relevant, but the one code which is has been published in 2017. It is the applications of intelligent transport systems. So that everybody, I think, now it is required that everybody should understand and get the knowledge about this code. So most of these codes now, again, fortunately, like as I mentioned, that catalog, Indian Road Congress catalog, you can actually go through all this type of those numbers, their details, prices, plus also you can download on Google. So most of them are now you can download if you need. So no need to go and buy or go to the, say, library or other places. So it is better to keep whatever is relevant for you. Yeah. Next, please. So this is just that content of that the code on intelligent transport systems by the IRC. So here it is all deals what is the ITS, what is the role of ITS, its ITS architectures, the need for that ITS, then detection and collection of data, ITS for traffic management, ITS for public transport system. Next, please. So again, applications of ITS for all other aspects. Then phases of implementation of ITS around the world. So that is a quite good comprehensive document, which is only just 5 years old, about 8 years old. But still it is the one which is quite, you can say, useful. But again, like time to time, the technology is evolving, technology is changing. So these those devices, they are changing, their applications are changing. Also, their availability in India is another thing. But more or less now you can see that they have quite good exhaustive list. So when you are preparing any terms of reference or any bidding document, so one can refer to this one, plus also one can talk to the manufacturers what they can supply and what are their specifications and what is their usefulness, what cost is involved, and depending on the budget,
like recently for Himachal Pradesh project, we recommended lot of these ITS and enforcement equipments, almost more than 100 crores of rupees. So on all our projects which are funded by Asian Development Bank or World Bank or Japanese, so we try to procure those items. We train the people like for enforcement and for this traffic management systems. But again, it is like evolving, and if anybody has any like a doubt or anything, they can always refer this Indian Road Congress, this ITS code. It is quite exhaustive, and but at the same time that if you go to YouTube, at least you will find about 50 articles and 50 those more than 50 YouTube on this ITS applications. So again, because they are there, I am just giving a reference, because you can get quite exhaustive knowledge, and you can see that actual applications in different countries, different projects. Yeah, next please. So what is ITS actually? The main thing is that what is, we say that that ITS is an advanced application that aims to provide innovative services relating to different modes of transport and traffic management, and enable users to be better informed and make safer, more coordinated and smarter use of transport network. So basically that network is there, road network, but how to efficiently use that network and how we can actually improve the performance, that is important. हाँ जी, हाँ तो वो यही सिस्टम है. तो वो दूसरा बाद में फिर फिलिप्स जो है वो जो यूजुअली मोस्ट ऑफ द सिग्नल्स जो वो फिलिप्स ने बाद में फिर अडॉप्ट किया, बट सिस्टम वही है, प्रिंसिपल वही है. तो वो बेसिकली वही है कि जब तक आप नहीं तो अदरवाइज़ क्या होता था कि आपका उस तरफ कोई ट्रैफिक नहीं है बट स्टिल आप वेट कर रहे हैं. तो उसमें ये होता है कि वो जो गाड़ियां हैं वो जो टाइम है उसका उपयोग हो जाता है, और दैट इज़ व्हाट वी कॉल द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम या ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द नेटवर्क. तो वो जो है ऑप्टिमाइजेशन जो है वो किसी मतलब कि जो हम लोग का जो साधन है उसको कम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना. तो दैट इज़ लाइक अ फिलॉसफी ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट. ट्रैफिक मैनेजमेंट का मतलब ही यही है कि हम जो भी हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज हैं या अवेलेबल कैपेसिटी है, हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उपयोग करें. तो उसमें फिर ये टेक्नोलॉजी सब बहुत यूज़फुल है. तो इसके बेनिफिट बहुत हैं, क्योंकि इसको रियल टाइम में एक तो आप सब कर रहे हैं, और दूसरा ये टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं. दूसरा कई चीज़ों में जैसे इन्फोर्समेंट है. अब इन्फोर्समेंट में है तो आप अगर ओवर स्पीड कर रहे हैं तो ओवर स्पीड अगर कोई कर रहा है तो उसका फिर वो चालान करना है. तो चालान करने के लिए ये बहुत उसमें उपयोगी है, क्योंकि जो भी कोई ओवर स्पीड करता है तो उसका बाकायदा फ़ोटो आ जाता है, लाइसेंस फ़ोटो, वो क्योंकि कोर्ट में एविडेंस चाहिए. तो वो फिर फ़ोटो उसको सबमिट करके और फिर उसको, और साथ में इमीडिएटली उसको इन्फॉर्म भी किया जाता है कि भाई आपका फ़ाइन ये है, और उसको तो वो पूरा सिस्टम है कि मतलब कि आपने उसको डिटेक्ट किया. आपका अगर वो स्पीड से आप ज़्यादा जा रहे हैं तो कितना फ़ाइन होगा, वो सब वो सिस्टम जो है वो पूरा चालान भी वो ऑटोमेटिकली वो इशू कर देगा, और वो कोर्ट को भी भेज देगा कि भाई इनसे इतना फ़ाइन आया है, इनसे इतना कलेक्ट करना है, और उस आदमी को है कि भाई आपको इतना फ़ाइन देना है. तो ये सब जो चीज़ें हैं वो अब नाउ इट इज़ ऑल नंबर प्लेट को वो रिकग्नाइज़ कर लेते हैं कैमराज जो हैं. जितनी भी अब नई प्लेट्स, नंबर प्लेट्स आ रही हैं, उनको सबको दैट रिकग्निशन सिस्टम है. तो नंबर प्लेट को रिकग्निशन करना, ये करना, इस तरह से खास करके इंडिया में इतना नहीं शुरू हुआ है. बट एक तो वेरिएबल मैसेज साइन है रोड्स के ऊपर है, वो आपका जैसी जैसी सिचुएशन है उसको आप वहाँ पे
डिस्क्राइब कर सकते हैं। साथ में वेरिएबल स्पीड जो सिस्टम है वो वहाँ पर एक ही साइन है जो अभी आई डोंट नो वेदर एनी इंडिया एनीवेयर दे हैव इंट्रोड्यूस्ड। तो सेम साइन जो है वो आपका 60 भी बताता है, 80 भी बताता है, 90 भी बताता है, 120 भी बताता है। तो उसके हिसाब से आप उसको बैठे बैठे ऑफिस में और आप मॉनिटर कर रहे हो ट्रैफिक, पूरा ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में, और उस मॉनिटर के हिसाब से आप उस लेन के ऊपर जो स्पीड है उसको सेम जो साइन है उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से व्हाट वी कॉल, जैसे वो इंसिडेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वही कोई ब्रेकडाउन हुआ या कोई एक्सीडेंट हुआ उसको आप सब हर तरह की सूचना ले सकते हैं, उसको आप उस पर टो ट्रक को भेज सकते हैं और उनको डाइवर्ट कर सकते हैं। तो वो सब जो चीज़ें हैं वो इंटेलिजेंट इसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम के एप्लीकेशन में आता है। नेक्स्ट प्लीज। तो इसी तरह से जैसे सिग्नल का बताया, आपका साइन का बताया। नेक्स्ट प्लीज। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन हैं, एरियाज़ हैं, एप्लीकेशंस हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क, व्हीकल सेफ्टी है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्फोर्समेंट है, डेटा कलेक्शन, पोस्ट एक्सीडेंट केयर, कैंपेन्स, टॉकिंग, ट्रैकिंग नॉविस ड्राइवर्स। सो इस तरह का जो भी है आप अवेयरनेस भी इससे क्रिएट कर सकते हैं, इन्फोर्समेंट भी कर सकते हैं, और इंजीनियरिंग तो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो इंजीनियरिंग अवेयरनेस एंड engineering education and enforcement, all three are possible at the same time with the आपके इसके ITS के applications के साथ। ये जैसे है, ये साइन देखिए ऊपर जो लिखा है ये 50। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ये वेरिएबल में से साइन है, ये जैसा आपका रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से जब वर्क हो रहा है, लेन क्लोज है, तो इसको फिर साथ में आप वो भी दे रहे हैं कि भाई मर्ज राइट, लेन क्लोज्ड, तो उसको आप ये कर सकते हैं। स्पीड को जो ये 50 है इसको भी आप उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं कि भाई आपका जैसा, और प्लस दीज आर ऑल इन्फोर्सेबल। ऐसा नहीं है कि ये जो स्पीड है ये खाली एडवाइजरी स्पीड है। ये जो स्पीड है इसके ऊपर आप रडार भी लगा हुआ है, वो आपका अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो वो फिर उसको चलाने शुरू कर देगा। नेक्स्ट प्लीज। इसी तरह से है कि पहले वार्निंग है, जैसे ये इस टाइप का कोई भी चीज़ें इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसको जैसे स्कूल जोन है या वर्क जोन है या कोई पर्टिकुलरली जहाँ डेंजरस जोन है, जहाँ काफ़ी हजार्ड है या मतलब आपका एक्सीडेंट हो सकता है, तो उन सब जगहों पे बजाय इसके कि आप एक फिक्स लगा दें कि भाई हाँ इतना स्पीड है आपको जाना ही जाना है, तो शुरू में जब इस टाइप के कोई भी अपना साइन आप लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पहले लोगों को एजुकेट किया जाता है और प्लस उनको टाइम दिया जाता है कि वो एडजस्ट कर लें। तो उसके लिए क्या होता है कि जब वो जो जैसे यहाँ पर है कि आपका 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अलाउड है, तो जो भी कोई आएगा उसकी स्पीड यहाँ पे बताएगा वो। तो अगर स्पीड ज़्यादा होगी तो वो रेड कलर में आएगा, अगर स्पीड कम है तो वो सिर्फ लिखेगा। और अपना जैसे वो बोला कि रिवार्ड देते हैं, तो रिवार्ड तो नहीं देते, बाकी इसमें यह है कि हाँ वो आपको इन्फॉर्म करेगा कि भाई आप इसको फॉलो कर रहे हैं। अच्छा सा एक वो क्या नाम से उसमें वो बताएगा कि हाँ भाई आप सही तरीके से जा रहे हैं। पर जहाँ आप ऊपर जाएंगे, जितना ऊपर जाएंगे उस हिसाब से उनका कलर और जो ये जो लिखा है डेंजर, उस हिसाब से वो चेंज होता जाएगा। तो जैसे अब 20 में 30 गया कोई, तो वो काफ़ी 10 किलोमीटर की स्पीड ज़्यादा चला गया। तो ये जो सिस्टम है ये पोर्टेबल है, सस्ता है, और ये एक तरह का वार्निंग का काम करता है
शुरू में खास करके लोगों को बताने के लिए, सिखाने के लिए ये इस टाइप का सिग्नल, और ये अब इंडिया में काफ़ी कंपनीज जो हैं वो इस टाइप का सप्लाई करती हैं। तो पहले ये भी नहीं था, बट अब ये जो है ये इस टाइप का जो साइन आने लगा है। और इस साइन में यही है कि फ़ायदा ये है कि आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। हाँ, इसको हाँ, तो इसको जो है अब आप यहाँ पर जो ये इसका व्हाट हम लोग क्या बोलते हैं इसको, आपको कि पूरा उसको इन्फॉर्म भी कर रहा है और साथ में उसका नंबर भी दे रहा है कि भाई कितने स्पीड पे आप जा रहे हैं। तो ये चेंज होने वाला है, वेरिएबल है। हाँ, नेक्स्ट प्लीज। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी अपना ईस्टर्न फ्रीवे, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे दिल्ली में जब शुरू हुआ था, और यहाँ पर वो जो अपना ये जो एडोर एक कंपनी है पुणे में, तो उन्होंने ये कुछ चीज़ें टाइप के जो आपको टेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस जो है उसको यूज़ करके अपने मोस्ट ऑफ द लाइक अब एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवेज़ उन पर या अर्बन जो फ्रीवे है, अर्बन रोड्स हैं, उन पे अब धीरे धीरे ये सब जगह पॉपुलर हो रहा है और लोग लगा रहे हैं। तो जैसे पहला है ये वेरिएबल मैसेज ट्रेलर, तो ये जैसे ये है, तो इसको आप पोर्टेबल है, ये जहाँ जहाँ जैसे आप ले जा सकते हैं उस पर अपना लिख सकते हैं। और करीब 20 तरह के इसमें मैसेज हैं, और जो कि आप सब कुछ ये लाइक जीपीएस से कनेक्टेड है। आप ऑफिस में बैठे बैठे 20-25 साइन के ऊपर ये जैसे फॉग आ गया मान लीजिए, या पर्टिकुलरली कोई और भी कोई मैसेज देना है, या जनरल वो है ना कि भाई ओबे द रूल्स, तो वो जो चीज़ें हैं वो सब इस पे आप करके कहीं पर भी इसको पोर्टेबल। और सरप्राइजिंगली जस्ट इसमें 2007 में जब ये पाम जुमेरा दुबई में हुआ, वहाँ पे हम लोग ने जो था ये लोगों को बताने के लिए हम लोग को ने इसको 4 इस टाइप के साइन ऑस्ट्रेलिया से एयरलिफ्ट करवाए कि लोगों को पता चले पहले से कि भाई ये आगे कहाँ डाइवर्जन है, कैसे जाना है। तो नाउ इट हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर, और नाउ कंपनीज यहाँ अपने इंडिया में बहुत सारी कंपनियाँ अब ये बनाने लगी हैं। बट इट इज़ वेरी यूज़फुल इवन इन एनी टाइप ऑफ आपका जो आपका अवेयरनेस क्रिएट करना है, या आपको स्लोगन बताना है, या आगे के बारे में बताना है, तो ये साइन को है और इट इज़ पोर्टेबल है। तो आप इसको जैसे एयरपोर्ट पूरे रास्ते पे है, या ये फॉग का सिचुएशन है जैसे अभी आ रहा है, तो अभी ये ईस्टर्न एक्सप्रेसवे है या इस टाइप के नोएडा एक्सप्रेसवे है जहाँ पे फॉग की काफ़ी प्रॉब्लम होती है, तो वहाँ पर ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि इसमें कंटिन्यूसली आप इन्फॉर्म कर रहे हैं और प्लस रियल टाइम में आप इसको चेंज कर रहे हैं, ये जो मैसेज है जो इसको। फिर ये ट्रक माउंटेड एटेन्यूएटर्स, तो वो सेम टाइप का है, वो ट्रक के ऊपर अपना लगा देते हैं। आगे नेक्स्ट है, या नेक्स्ट करना, नेक्स्ट प्लीज़। हाँ, ये जैसे है, तो इसमें है कि वो अपना ट्रक जो है वो बताएगा कि भाई अगर इस पे कुछ काम हो रहा है तो वो ये लेफ़्ट में कि भाई आप जो ट्रैफिक इसकी बजाय इस लेन के दूसरी लेन पे चले जाएं। नेक्स्ट प्लीज़। तो ऑस्ट्रेलिया में तो इसका काफ़ी ज़्यादा उपयोग हो रहा है। जैसे आई टोल्ड कि वो जो सिडनी कोऑपरेटिव एडाप्टिव सिस्टम है वो करीब 30 कंट्रीज़ में यूज़ हो रहा है, और उसका मेन पर्पज़ है कि क्योंकि इंटरसेक्शंस के ऊपर जब सिग्नल आप एक बार प्रोवाइड करें तो सिग्नल हैज़ टू बी ऑपरेटेड इन ए प्रॉपर मैनर, और उसको ऑप्टिमम मतलब डिले कम से कम हो सिग्नल पर, तो उसमें ये इसका उपयोग है। और इसमें जो वहाँ के आपका लेन मैनेजमेंट है, उसके बाद में स्पीड मैनेजमेंट है, रैंप मीटरिंग है, ई टोलिंग है, ये सब चीज़ों के लिए इसका काफ़ी उपयोग है। कि जैसे एक्सप्रेसवे है, अब एक्सप्रेसवे पे जो गाड़ियां हैं वो व्हाट वी कॉल कि हम लोग उसमें मर्जिंग ही अलाउ करते हैं, मर्जिंग और डाइवर्जिंग, एक्सेस कंट्रोल करते हैं। तो जो एक्सेस कंट्रोल होता है कि मतलब उस पर हर कोई नहीं जा सकता,
जिसको भी जाना है उसको या तो मर्ज करना है या फिर डाइवर्ज करना है, मतलब या तो ऐसे आना है या ऐसे जाना है। तो जब वो ऐसे आ रहा है, मर्जिंग कर रहा है उसमें, तो कितने लोग मर्ज कर सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं रैंप मीटरिंग। तो जो आ रहे हैं उनको भी हम लोग रोक करके वहाँ पे रेड सिग्नल लगाते हैं और फिर उस पर ग्रीन, उसको बारी बारी से हम लोग ग्रीन करते हैं। तो जब ग्रीन होएगा तो एक गाड़ी अंदर जा सकती है, अदरवाइज वो वहीं की वहीं रुकेगी। तो जो भी मर्जिंग है, अगर मान लो इस पर मेन हाईवे के ऊपर, मेन एक्सप्रेसवे पे कंजेशन है, तो उसको रोकने के लिए कि भाई उस पर अगर जब वो फ्री फ्लो है या उसका एक ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा है तो उसमें हम लोग मर्जिंग अलाउ कर सकते हैं। पर कितने लोग को मर्जिंग अलाउ करना है वो उसको हम लोग जो आकर के जो मिल रहा है उसको रैंप बोलते हैं। तो रैंप में जो मीटरिंग है उसका जो कि कितने लोगों को अलाउ करना है अपना, तो उसमें ग्रीन टाइम देंगे। जब वो चला जाएगा, अगर नहीं है तो वो रेड पे खड़े रहेंगे। फिर वो किस स्पीड से उनको मर्ज करना है तो पहले से उनको बता देंगे कि भाई आपको उसके बाद में डायरेक्ट मर्ज नहीं करेगा, उसको पहले हम आपको करीब 100 मीटर्स का करीब उसको पैरेलल चलेगा और फिर वो लेन क्लोज हो जाएगी और फिर उनको मर्ज करना पड़ेगा। तो ये जो सब है, ये सब टेक्नोलॉजी से हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं। इसी तरह से जैसे ये बताया कि आपका लेन मैनेजमेंट भी है इसी तरह का। तो ये बहुत हम लोग के यहाँ अभी इंडिया में एक्सप्रेसवे तो बन गए हैं, पर वो जो स्पीड है वो फिक्स रहता है। तो जो स्पीड है वो जो ये आपके लूप और डिटेक्टर हैं उससे स्पीड को काउंट, जो ट्रैफिक है उसको भी काउंट करता है, वेदर कंडीशन को भी वो मॉनिटर करता है और उसके हिसाब से वो जो स्पीड है वो चेंज होती रहती है। 60, 40, 60, 80, 100, 120। तो ये जो सब स्पीड है, वर्क जोन है, अगर मान लो उस पर वर्क कर रहे हैं तो 40, तो सेम साइन जो है वो चेंज होता रहता है। तो इन रियल टाइम जो उसका जो और व्हाट वी कॉल द डायनामिक स्पीड सिस्टम, तो इससे क्या होता है कि जो भी लोग मोटरिस्ट हैं उस पर जा रहे हैं उनको सबको पूरा, एक तो पहली बात है कि पहले से उनको इन्फॉर्मेशन है, वो उनको पहले से बताया जाता है और उसके बाद में जब वो चल रहे हैं तो उनको बताया जाता है कि भाई आप कौन सी लेन यूज़ करें, कितना टाइम लगेगा और फिर आप कैसे जाएंगे। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसको हम लोग बोलते हैं डायनामिक स्पीड जोन्स और डायनामिक स्पीड साइंस। तो वो अभी हम लोग के यहाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रैफिक का पैटर्न है उसमें ये खाली नहीं है कि फिक्स कर दिया 120 या 100 या 80 उस स्पीड पे अपना जो है वो, क्योंकि ट्रैफिक इज़ चेंजिंग, ट्रैफिक जो फ्लो है या जो है वो चेंज होता रहता है, ऐसे वेदर कंडीशन चेंज होती रहती है। तो अगर ये दोनों चीज़ें पहले से पता हो तो आप उसको साइन को, और प्लस आप साइन को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप साइन को चेंज कर सकते हैं, आपको पता है कि भाई कितना ट्रैफिक जा रहा है, तो आपका वो जो डिले कम से कम होएगा, आपका जो नेटवर्क है या जो आपका एक्सप्रेसवे है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा, ज़्यादा इफ़िशिएंट फ्लो होगा। और प्लस आपको जब पहले से ही पता है कि भाई आपको 60 पे जाना है, तो वो जो होता है कि लोग ओवर स्पीड करते हैं, जो सेफ्टी भी बहुत इम्प्रूव होती है। तो ये जो डायनामिक स्पीड सिस्टम है और ये वेरिएबल जो स्पीड साइन है, ये बहुत बहुत यूज़फुल है और इसको हम लोग को इंडिया में जितनी जल्दी हो सके उसको सब एक्सप्रेसवे पे, नेशनल हाईवेज पे, अर्बन रोड्स पे इसको लाने की कोशिश करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। तो उसी तरह से ये है, ट्रक्स के लिए भी है, जैसे ट्रक्स हैं, हेवी व्हीकल ट्रैफिक है, तो उसके लिए भी बहुत सारे जो ट्रक्स हैं उनमें वो हैजार्डस गुड्स ले जाते हैं, मतलब इस टाइप का केमिकल या ले जाते हैं। तो उनके लिए एक पर्टिकुलर रूट, कौन सा रूट वो लोग फॉलो करना है। मान लीजिए कोई ब्रिज है तो उसकी हाइट जो है वो अगेन क्लियरेंस क्या है, 5.5 मीटर देना चाहिए।
पर अगर वो मान लीजिए 4 मीटर है तो ट्रैफिक को डाइवर्ट करना पड़ेगा। जो भी ट्रक्स आ रहे हैं या बस आ रही हैं, वो जो भी अपना जिनकी हाइट ज़्यादा है तो उनको पहले से इन्फॉर्म करना है और उनको डाइवर्ट करना है। तो उनका जो पूरा रूट है वो उनको अपना बताना है। इसी तरह से इसमें जो मॉनिटर करते हैं अपना गाड़ियों का भी, तो उसमें अगर कितने घंटे ड्राइवर चल रहा है और वो कैसे मतलब वो कितना रुकना है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में है तो वहाँ पे है कि हर 3 घंटे के बाद में आपको मिनिमम 15 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा। तो वो ब्रेक आप ले रहे हैं कि नहीं, तो वो है, फिर किस स्पीड से आप जा रहे हैं, वो सब पूरा डेटा मॉनिटर हो करके वो आप उसकी ड्राइवर की परफॉर्मेंस आप उसको वाच भी कर सकते हैं और इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट प्लीज। तो काफ़ी मतलब इसमें है कि एरिया जो है वो काफ़ी डेवलप हो रहा है और इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं नई नई टेक्निक्स या नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं और उनका सबका मेन एप्लीकेशन जैसे कि बताया कि भाई आपका जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव होना ज़रूरी है। तो So ITS traffic management system focus specifically on improving the throughput and safety of the urban roads through adaptive controls and analytics. So ये जो चीज़ें हैं ये सब पूरा इनका as I told कि भाई briefly I have mentioned all those type of things. But again आपको जितना ज़्यादा आपको इसको कोड को देखें और फिर YouTube को देखें और प्लस अपना जो भी आपको कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबको देखें। और बहुत सारे मैन्युफैक्चरर हैं नाउ, जैसे कि उनका आपका ब्रोशर से लेकर के आप इसको स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो ये एक तरह का नया है, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल अब आ रहा है फ्यूचर में। ऑटोमेटेड व्हीकल्स आ रहे हैं, उनमें सिस्टम्स भी आ रहे हैं और साथ साथ में ये जैसे स्पीड एज आई टोल्ड कि ये आपका लेन बंद है, ये 40 है, ये चेंज होता रहता है, स्लो डाउन है। तो सेम साइन जो है उसको आप 4-5 कॉन्फ़िगरेशंस में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस जो गाड़ियों में जो खास करके अब उपयोग हो रहा है कि गाड़ियाँ जो है अगर आगे वाली गाड़ी स्लो होती है तो आपकी गाड़ी भी ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगी। उसका एक जो मिनिमम 2 से 3 मीटर का जो गैप है वो मेंटेन करेगा। तो रियर एंड कोलिजन जो होता है, काफ़ी हेड ऑन कोलिजन के बाद नंबर 2 जो कोलिजन होता है वो रियर एंड होता है। तो रियर एंड में वो जो है अभी बहुत सारी गाड़ियां, अभी आपने सुना होगा कि ट्रक खड़ा हुआ था रोड के किनारे पर और कार स्पीडिंग कार उसमें घुस गई और 15 आदमी, 5 आदमी, 10 आदमी उनकी डेथ हो गई। तो अगर वो कार में ये फीचर हो कि वो आगे की जो ऑब्जेक्ट है, आगे कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अगर वो डिटेक्ट कर ले, इसी तरह से वो कोई भी साइकिलिस्ट जा रहा है, पेडेस्ट्रियन जा रहा है, तो उसको वो डिटेक्ट कर ले, तो इसको जो एडाप्टिव सिस्टम बोलते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो अपना गाड़ी अपने आप रुक जाएगी, अपने आप स्लो डाउन हो जाएगी और उसको किसी तरह का वो कोलिजन जो है वो नहीं होगा। और फिर विद इन द कार अब तो बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं। अभी जो लेटेस्ट फीचर जो आ रहा है उसको वो आपको इंटेलिजेंट एडाप्टिव सिस्टम बोल रहे हैं। तो वो जितनी भी कारें हैं उसमें एक से आपका जो ये टूल्स है या इंस्ट्रूमेंट है वो फिट हो जाएगा। तो वो जितने भी साइन हैं रोड के ऊपर उसको वो पढ़ेगा और गूगल से उसको वेरीफाई करेगा कि इस रोड की क्या स्पीड है, इस सेक्शन की क्या स्पीड है, और उस स्पीड से वो बढ़ने नहीं देगा। तो अभी क्या होता है कि भाई ऊपर साइन है 120 का, पर ये आपके ऊपर है, मर्जी है कि आप उसको 80 पे चलाएं या 140 पे चलाएं। पर वो जो साइन है, वो जो टूल्स है, जो इंटेलिजेंट एडाप्टिव सिस्टम, तो उसमें वो होगा कि आपको वो भी उस स्पीड से बढ़ने ही नहीं देगा।
तो जो ये हम लोग जो ये कर रहे हैं कि इतना स्पीड से इतने एक्सीडेंट्स हो रहे हैं या ओवर स्पीडिंग हो रहा है, और प्लस वो जो स्पीड है जिसे बताया कि भाई वो उस स्पीड से अगर वो स्लो डाउन भी हो रहा है तो पीछे की सब गाड़ियां हैं उसमें भी, क्योंकि सिस्टम ऐसा है तो वो सब की सब गाड़ियां स्लो होंगी। तो उसमें कोई वे नहीं है कि आगे की गाड़ी स्लो हो गई तो पीछे ने आके टक्कर मार दी। तो ये जो सब चीज़ें जो हैं उसको टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन करके, सिमिलरली जो ये अब सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल आ गया है, इसमें आपको स्टीयरिंग छूने की भी ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली उसमें चारों तरफ ये सेंसर लगे हैं, रेडार लगे हैं कि वो सबको पूरा ट्रैफिक को पढ़ करके और अपना, तो ऑलरेडी इस टाइप की टैक्सीज़ और बसेस जो हैं वो सिंगापुर में और कई कैंपस में वो ऑलरेडी ऑपरेट कर रही हैं। और धीरे धीरे वो जो ड्राइवर एरर होती है वो अब नहीं रहेगा कि भाई ड्राइवर का क्या एक्सपर्टाइज है, ड्राइवर का क्या नॉलेज है, वो सब टेक्नोलॉजी के द्वारा किया जाएगा। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये ITS के ही पार्ट हैं। हाँ, नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, या, सो थैंक यू। सो एनी क्वेश्चन और एनी लास्ट में कैमरे की तरफ देख कर ओके। हाँ जी सर, मेरा एक छोटा सा सवाल था। हाँ जी। कि आपने एक सर अच्छी चीज बताई कि 3 घंटे के बाद 15 मिनट का एक ब्रेक लेना चाहिए। हाँ जी। हाँ, तो सर क्या कुछ और ऐसे रेगुलेशंस हैं हमारे वेस्टर्न कंट्रीज में या ऑस्ट्रेलिया में कि मैक्सिमम आवर ऑफ ड्राइविंग कितना होना चाहिए? दैट इज वन थिंग सर, क्योंकि अब हमारे साथ हमारे होम डिपार्टमेंट पुलिस से भी काफी लोग हैं, यहाँ सभी लोग ये चीज बोलेंगे सर कि हमारे देश में सर इस समय ये हो रहा है कि 16-17 घंटे गाड़ी चलाने के बाद वो टैक्सी ड्राइवर अगले दिन सुबह 5 बजे फिर आपके दरवाजे पे खड़ा हो जाता है या उसको कोई दूसरा ही बुला लेता है। तो सर ये जब मैं ADB प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, एक रुवाना मैडम आई थी श्रीलंका से, तो शी डिड नॉट अलाउ। उन्होंने पूछा कल रात को कितने बजे आए, तो उसने बोला मैं 12 बजे आया। तो उन्होंने MP रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में, आप शायद जानते हो, अनिल चंचुरिया साहब को फोन करके मना किया। हाँ जी। आई विल नॉट गो विद दिस टाइम। तो सर क्या है ऐसे कुछ? देखिए, वो सबसे बड़ी बात है कि हर एक जॉब्स में आप कोई सा भी जॉब्स करें उसमें एक जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट होता है तो उसमें नॉर्मली जो होता है 8 आवर्स, जो 8 वर्किंग आवर्स जो हैं वो पर डे, वो सबके लिए मोस्ट ऑफ द से सिचुएशन। सो इस टाइप के जो उसमें है कि भाई 8 घंटे आपको 40 घंटे पर वीक ये आपको अलाउड है। तो ऑफिशियली जो ये है, बाकी जैसे अब ट्रक का वो है, जो ट्रक ड्राइवर है या बस ड्राइवर है वो या टैक्सी ड्राइवर है, उस केसेस, उस टाइप के केसेस में थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होता है, क्योंकि जो वहाँ पे रूल रेगुलेशन कोई फॉलो नहीं करता। अनऑफिशियली इट इज़ 12 आवर्स कि भाई 12 आवर्स की ड्यूटी है, 12 आवर्स के बाद में वो शिफ्ट हो जाएगा। गवर्नमेंट में है, जैसे बसेस, हम लोग DTC में थे, हम लोग के हम अपना 5000 बसेस थी और हमारे लोग के 44,000 एम्प्लॉई थे। तो उसमें आइडिया यही था कि जो भी बस चलेगी वो अपना 8 घंटे से ज़्यादा वो ड्राइवर ड्यूटी नहीं करेगा। तो वहाँ 3 शिफ्ट का पैटर्न था। जब वो लॉन्ग शिफ्ट पे जाते थे, जैसे लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, तो उनको 12 आवर्स था। तो वो 12 आवर्स तो जाना है, मतलब, पर वो कंटिन्यूस नहीं जाना है, उसमें ब्रेक लेकर के जाना है। तो उसमें 1 घंटे का लंच ब्रेक हो गया, बीच बीच में आपके जो स्टॉप हैं वहाँ पे ब्रेक हो गया। तो इस तरह से मैक्सिमम जो कह लीजिए कैपेबिलिटी के हिसाब से और आपका लेबर रूल के हिसाब से या उसके हिसाब से ड्राइवर को ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 आवर्स की ड्यूटी दे सकते हैं, बट विद सफिशिएंट ब्रेक। उसमें आपका लंच है, टी ब्रेक है, स्टॉप के ऊपर ब्रेक्स है, इस टाइप का है। तो आप इससे ज़्यादा नहीं दे सकते उसको। तो अगर पर ये जो प्राइवेटली लोग करते हैं तो वो उसमें ये नहीं है कि आप 8-8 घंटे की बजाय वो अपना 20-20 घंटे भी चलाते हैं लोग। हाँ, तो वो इट इज़ ए इनह्यूमन, इट इज़ ए अगेंस्ट द लॉ। हाँ हाँ, वो तो है। फटीग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक फटीग जो है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है।
उसमें जैसे आपका खास करके जो मैक्सिमम जो इस टाइप की डेथ्स होती हैं वो होती हैं आपका सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच में, जो इस टाइप के जो लाइक ए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवलिंग में जो एक क्रेशेस होते हैं तो उस टाइप के होते हैं। तो वो वहाँ पर इसीलिए वो मॉनिटर करते हैं। वो जब वो जो आपके ये जो ओवरहेड साइन है उन पे ओवरहेड साइन के ऊपर जब भी कोई ट्रक गुजरता है तो उस पे वो अपना उसको एक तरह का उसको आइडेंटिफिकेशन होता है, वो उसको बताना पड़ता है कि उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो वो जो रिकॉर्ड करता है उससे वो कर लेता है कि ट्रक को जो ड्राइवर जो चला है वो कितने घंटे चलाया है, कितने घंटे उसने एक जगह से दूसरी जगह जाने में। तो ये इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम से बहुत आसानी से हो जाता है कि भाई एक ड्राइवर ने कहाँ से चला, कहाँ तक गया, किस स्पीड से गया। तो ये सब जो चीज़ें हैं, और प्लस गाड़ी में भी इस टाइप की अब नाउ मैकेनिज़्म है, गाड़ी पूरा मॉनिटर करती है। उसमें गाड़ियों में अब आप अगर फ्लीट व्हीकल हैं उसमें एक तरह का एक ये आपका सब पूरा डेटा है वो रिकॉर्ड होता है कि किस स्पीड से आप गए, कितने जगह गए, आपने कितना रोका, ये सब पूरा चीज़ें अब जब है वो मॉनिटर हो रहा है। बट एज ए नॉर्मल टाइप ऑफ सिचुएशन है उसमें हिसाब से भाई 12 घंटे से ज़्यादा चलाना ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें लाइफ इज़ इन्वॉल्व प्लस इनकन्वीनियंस इज़ इन्वॉल्व। तो ऑस्ट्रेलिया में तो यह है कि हर 2 घंटे के ऊपर या 3 घंटे के बाद में 15 मिनट आपको ब्रेक लेना ज़रूरी है, आपको रोकना पड़े। और ऐसे भी गाड़ियाँ गर्म हो जाती हैं तो उस हिसाब से भी वो ज़रूरी है। तो एवरी 200 किलोमीटर्स या तो 200 किलोमीटर्स कह लीजिए अगर एक्सप्रेसवे है, या फिर आपका जो 3 आवर्स टाइम है, तो वो उसके बाद में 15 मिनट आपको रुकना ही रुकना है। और उसके लिए इसीलिए ज़रूरी है कि जो रोड प्लानिंग कर रहे हैं या डिज़ाइन करते हैं उनको शेल्टर और वो आपका बस या ट्रक स्टॉप्स with all facilities they have to provide every अपना इस पे 100 या 200 किलोमीटर्स के ऊपर होना ही होना चाहिए, जहाँ पे कि वो अपना ट्रक रुक सके, उसको सर्विसिंग का भी ज़रूरत पड़े, फ्यूल हो ज़रूरत पड़े, अपना नाश्ता और खाना पीना है वो कर सके। तो इस टाइप के जो अपने यहाँ इनडायरेक्टली पहले ढाबा होते थे ऐसे, तो ढाबा में था कि भाई हर एक का अपना अपना जैसे फिक्स होता था कि वो उस जाएगा, उस ढाबा पे रुकेगा, खाना वाना खाएगा, नाश्ता करेगा, वहीं पेट्रोल पंप होता था, वहीं क्लीनर रहता था, तो वो सब होता था। बट ऑफिशियली एवरी प्लानर जो भी रोड पे आपका बना रहा है उसको ये सब चीज़ें प्रोवाइड करनी चाहिए। इसी तरह से ओवरटेकिंग लेन है, जैसे इसके हिसाब से आपका हिल रोड्स के ऊपर है तो उसमें एक्स्ट्रा लेन जो है वो ज़रूर प्रोवाइड करना है। और अगर स्लो व्हीकल हैं तो उनको रोकने के लिए कि भाई वो थोड़ा रुक सकते हैं और बाकी लोग जा सकते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं। और कोई क्वेश्चन है? सर, आप जैसे ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण देते हैं, ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्रफल इंडिया से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है। नहीं, 5 गुना ज़्यादा। लगभग? हाँ जी, लगभग। हाँ जी। और ऑस्ट्रेलिया की तुलना में भारत की पॉपुलेशन लगभग 55 गुना ज़्यादा है। हाँ जी, मतलब जो हाँ घनत्व है जनसंख्या का, जी, उसमें बहुत अंतर है। तो हम ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में तो इंडिया में कोई भी प्लानिंग कर ही नहीं सकते। देखिए, हाँ आप और हम अगर कंपेरिजन करें तो जो हमारे जैसा ही कंट्री है कोई, हाँ जी, जिसका जनसंख्या घनत्व इतना ही ज़्यादा, हाँ जी, उससे प्लानिंग करें तो मतलब मुझे लगता है कि वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ऑस्ट्रेलिया में तो नहीं, देखिए ये जो चीज़ें हैं ये चाहे आप एक जगह करें, चाहे आप 10 जगह करें, चाहे 100 जगह करें, चाहे 1000 जगह करें, ये टेक्नोलॉजी है। तो ये टेक्नोलॉजी जो है ये आपका ये नहीं है कि आपको सिर्फ आप ऑस्ट्रेलिया को हम बता रहे हैं, ये आपका सिग्नल है। जो ये सामने वाला चौराहा है, ये सामने वाले चौराहे पे आप अगर ये टेक्नोलॉजी लगाएंगे तो अगर आपका इम्प्रूवमेंट जो यहाँ होगा, या फिर आप पूरे दिल्ली के जगह लगाएं या बेंगलुरु में लगाएं या बॉम्बे में लगाएं, वो सब जगह ये इम्प्रूव करेगा। तो बेसिकली जो सब जो टेक्नोलॉजी हैं इनका एप्लीकेशन ये है कि ये
they improve the performance, they improve the safety, and then they improve the efficiency. तो ये जो चीज़ें हैं अगर आपको इम्प्रूव करना है तो अब क्योंकि जो टेक्नोलॉजी दे आर रीडली अवेलेबल एंड नाउ दे आर वेरी चीप ऑल्सो, ऐसा नहीं कि दे आर वेरी एक्सपेंसिव। तो जब ये चीज़ें होंगी, ये है कि आप अगर, हम लोग को तो एडवांटेज है कि हम लोग मास एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हम लोग मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं तो वहाँ पर तो वो थोड़े लिमिटेड करेंगे। हाँ जी, प्रैक्टिकली संभव नहीं है, हम लोग हाँ? देख रहे हैं सर, भोपाल में लगभग 20 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर्ड। हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ इसके आसपास की सब गाड़ियाँ आती हैं। अगर जैसे आप बता रहे थे कि 3 मीटर के डिस्टेंस से चले, हाँ उतना चलेंगे तो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। यहाँ तो जब तक उसके बिल्कुल पीछे लग के नहीं चलेगी गाड़ी, तो वो चल ही नहीं पा रही। देखिए, सेफ गैप हम लोग को रखना जरूरी है। हाँ जी, हमारे उसमें सर ई रिक्शा भी चल रहा है, हाँ जी, हाँ ऑटो भी चल रहा है, हाँ जी, हाँ इलेक्ट्रिक वाहन भी चल रहा है, जी, कार भी चल रही है, उसी में ट्रक भी चल रहा है, उसमें लाल बल्ब भी चल जी, रही हाँ है। ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में उसमें सिर्फ कारें चल रही हैं या ट्रक चल रहे हैं, उनके इतने मतलब नहीं। देखिए, उसका यही तो प्रॉब्लम है ना कि हम लोग जो हैं, हम लोगों ने जो रोड्स डिज़ाइन करी वो तो वो कार के लिए डिज़ाइन करी। जो भी कार, जो रोड की फैसिलिटी दी है, हम लोग ने सिर्फ कार और ट्रक के लिए दी है, मोटराइज्ड व्हीकल के लिए दी है। हम लोग भूल गए, जो हमारे प्लानर्स थे या इंजीनियर्स थे, वो भूल गए कि हमारे यहाँ पे टू व्हीलर भी है, हमारे यहाँ पेडेस्ट्रियन भी है, हमारे यहाँ बसेस भी हैं। तो ये हम लोग के जो प्लानर्स और इंजीनियर्स की गलती है कि वो लोग पहले तो आपको प्रोवाइड करना है, लाइक इंजीनियरिंग इज़ द फर्स्ट थिंग। आपको सेफ रोड प्रोवाइड करना है, सेफ कैपेसिटी प्रोवाइड करना है, सेफ फिर ऑपरेशन कम्स लेटर ऑन। तो मेन जो चीज़ है कि जो अभी इंडोनेशिया में हमने देखा, तो इंडोनेशिया में है कि वो जो टू व्हीलर हैं वो रोड पे नहीं चलते, उनके लिए सेपरेट लेन है। ऑस्ट्रेलिया, हालैंड, यूरोप पूरे में जो साइकिल चलती है वो आपके रोड पे नहीं चलती है, उसके लिए एक्सक्लूसिव साइकिल ट्रैक है। तो इस टाइप के जब चीज़ें हैं तो उसमें आपको ऐसा करना है। पर जब आपका मिक्स ट्रैफिक है, और ये मिक्स ट्रैफिक जो है खाली इंडिया में नहीं है, बहुत सारे कंट्रीज़ में है, तो मिक्स ट्रैफिक के लिए आपको क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करना है वो आपको सर्च करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। और वो जो चीज़ें हैं वो सब फॉर्चुनेटली जो इंडियन रोड कांग्रेस का जो ITS एप्लीकेशन कोड है उसमें ये सब डील किया है कि भाई क्या टेक्नोलॉजी हम लोग के यहाँ एप्लीकेबल है, हम लोग की मिक्स ट्रैफिक सिचुएशन में क्या हम चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, वो सब पूरा डिटेल आपको इसमें दिया गया है। तो इसमें ये नहीं है कि वहाँ जो यूज़ हो गया हम उसको नहीं अप्लाई, वहाँ जो यूज़ हो गया या वहाँ वो लोग कर रहे हैं उसको हम लोग को हिसाब से, अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा और ये सब करना पड़ेगा। अब जैसे ये वेरिएबल मैसेज साइन है, अब ये चाहे आप साइकिल हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, चाहे आपका स्कूटर हो, आगे फॉग है, ये सबको इन्फॉर्म करना है आपको। तो उसके लिए अभी अगर आप वेरिएबल मैसेज साइन लगा देते हैं जो कि उसकी विजिबिलिटी है वो फॉग में भी है कि कोई भी उसका जो लेटर्स हैं वो बड़े साइज़ हैं, इलेक्ट्रॉनिक हैं, और वो आपको आप दूर से पढ़ सकते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं उस टाइप की जो चीज़ें हैं, साइन बोर्ड जैसे हमने बताया कि वो जो साइन है वो आपका साइज जो है आप बड़ा कर सकते हैं। तो जो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस हैं, क्योंकि ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस से ही हम लोग पूरे ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं, उनको मॉनिटर करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं, उनको वार्न करते हैं। तो जो ट्रैफिक कंट्रोल डिवाइसेस हैं वो हम लोग के यहाँ पे बहुत कम हैं, और अगर हैं भी तो उनका साइज़, उनका जो टाइप है वो डिफरेंट है। तो वो अगर हम लोग सब चीज़ों को इनको प्रॉपरली प्रोवाइड करें तो मिक्स ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव टू यूज़ देम। और अभी ये है कि अब धीरे धीरे जो आपका बजट जो है उसमें ये सब चीज़ें रहता है प्रोविज़न, पर जहाँ आप एक नया साइन लगाने जाएं या नया उस पर जो रेट्रो रिफ्लेक्टिव सीटिंग है जो टाइप 4 की बजाय टाइप आप 11 लगाएं, तो लोगों को होता है कि भाई ये तो खर्चा, ज़्यादा खर्चा है, उसका 600 mm की जगह आप 900 mm लगाएं, लोगों को परेशानी होती है। जबकि IRC कोड में ये सब
लिखा हुआ है IRC कोड 67 जो है उसमें सब एवरीथिंग इज़ देयर। इसी तरह से जैसे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का है, इसमें सब कुछ टेक्नोलॉजी और सब कुछ लिखा हुआ है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 1988 में काफ़ी रिसर्च करने के बाद में हमने ये स्पीड हम्प और इसकी सबकी डिज़ाइन जो है वो IRC को सबमिट करी और उन्होंने उसको अप्रूव किया। तो IRC कोड 99 वो 1988 में बन गया था। अभी भी आपका भोपाल में या कहीं पर भी आप देखेंगे कि जो उसकी जो हम्प की जो हाइट होती है वो 10 सेंटीमीटर की बजाय कुछ और होती है, उसकी चौड़ाई जो होती है वो 3.1 मीटर और 5.5 मीटर की बजाय कुछ और होती है। तो अभी भी ये हालत है। अभी उस पर ये था कि इसको जो आप साइन बनाएंगे उसमें लिखना है आपको कि रोड हम्प है। तो पूरे गुजरात में अभी भी अभी हम 2 साल आई वॉज अपना कंसल्टेंट इन गुजरात गवर्नमेंट, वो अभी भी वो लोग सब लिखते हैं कि रोड बम्प है, रोड बम्प अहेड। और हम्प और बम्प में फ़र्क है। बम्प जो है वो नैरो होता है और यूजुअली रिजिड, जो आप प्लास्टिक में आजकल देखा होगा कि येलो कलर के लगा रहे हैं सब जगह, तो दैट इज़ बम्प। अब वो पूरे गुजरात में नेशनल हाईवे, एक्सप्रेसवे, कहीं पर भी आप चले जाएं, अहमदाबाद में या कहीं पर भी, वो सब जगह रोड बम्प ही लिख रहे हैं। सॉरी, हेलो हेलो, Hell, how are you? yeah, fine. Actually, I am busy. If you have anything, just let me know. And Payal, you can contact for anything.